how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study we are different. We already know we have 5 senses: vision, hearing, smell, taste and touch. Being sensitive towards differently abled, we will know factors for different analyze of same things. They are differently abled, overcoming physical challenges. We live in a diverse world full of people who look different from each other, believe in different things and have different customs and abilities. Every day has his own likes and dislikes. These likes and dislikes differ from man to man depending upon his taste, temperament, environment, resources and circumstances. देखिए, हम एक डाइवर्स वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे हम हर चीज़ में डाइवर्सिटी देखते हैं, ठीक है. हम अगर देखें डिफरेंट लोगों की तरफ तो जो उनकी चॉइसेस हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनका टेम्परमेंट डिफरेंट होता है, एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, सब चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे से डिफर करती हैं. ओके, नाउ ह्यूमन बींग्स हैव वेरियस sensors in the body which are sight, hearing, taste, touch and smell. These 5 are the traditionally recognized senses. Most noteworthy, these 5 are the super senses in the body. They are windows to the outside world. The sensing of each sensor sends information to the brain. Then the brain interprets the information and help in understanding and perceiving the world. Okay, human beings के 5 sensors होते हैं जो आप सबको पता है, जैसे हम senses कहते हैं, जो कि आपकी sight, hearing, taste, touch, smell. Okay, now जब भी आपको कुछ चीज़ पता चलती है इन senses के थ्रू ही पता चलती है और डायरेक्टली ये senses किसको इन्फॉर्म करते हैं? आपके ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं. ओके, अब ब्रेन को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तब जाके ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करने वाला होता है कि ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है. ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पे बताया है टच, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, 5 सेंसेस, साइट. ओके, द नर्वस सिस्टम रिसीव्स एंड प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन. आफ्टरवर्ड one is able to react, communicate and keep the body safe. Moreover, most information comes through sensory organs. This is possible because of the specialized cell in these organs receive and translate stimuli into useful signals. Eyes certainly translate light into image signals. On the other hand, ears transform sound waves into the sound signals using bone and fluids. Also, skin sends touch signs to the brain by making use of the specialized receptor. There are various chemicals in the ear that stimulate signals in which the brain interprets them as smells. Finally, the tongue is the principal organ of gestures and the consist of taste buds. देखिए, अब आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रिसीव करता है ये सारी इन्फॉर्मेशंस. ओके, अब इसके थ्रू जो ब्रेन तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है उस सारी चीज़ों का पता चलता है. अब इसके भी रीजंस हैं, जैसे कि आपका जो पहला वाला है वो है आइज़. ओके, आइज़ से आप चीज़ें देखते हो, जब लाइट में होते हो तभी आपकी आंखें जो है प्रॉपरली देख पाती हैं. ओके, उसके अलावा ईयर्स जो हैं उसकी साउंड वेव्स जो हैं वो साउंड सिग्नल्स देती हैं. ओके, नाउ स्किन, किसी भी चीज़ को आप टच करते हो तो स्किन जो ब्रेन को सिग्नल देती है, आपको पता चलता है ठंडा है, गर्म है, सॉफ्ट है, हार्ड है. ओके, इस चीज़ का आपको पता चलता है. ओके, इसी तरीके से आपको स्मेल का पता चलता है, जैसे कि एयर में बहुत सारे चीज़ें मिली हुई होती हैं तो आपको पता चलता है कि स्मेल कैसी है, किस चीज़ की है, अच्छी है, बुरी है. ओके, नाउ लेट्स नो. The sense organs send the signals to the brain through sensory nerves. The brain processes the stimulus and send the message back to the sense organ through motor nerves. देखिए, आपके जो सेंस ऑर्गन्स है वो सिग्नल्स देते हैं किसको? ब्रेन्स को. किसके थ्रू? सेंसेसरी नर्व्स के थ्रू. ठीक है, तो जो ब्रेन है वो प्रोसेस करता है स्टिमुलस के थ्रू और सेंड करता है मैसेज किसको? सेंस ऑर्गन्स को. किसके थ्रू? मोटर नर्व्स के थ्रू. ओके, डिफरेंट एनालिसिस ऑफ सेम थिंग्स. द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द टू द सेम थिंग कैन बी डिफरेंट. A child can see a snake or a shiny toy whereas an adult would see it as a dangerous animal. A non-vegetarian finds the smell of cooking flesh delicious while a pure vegetarian finds it foul. We should not make fun of anybody likes or dislikes. We all are unique of our own kind. Sensing things differently depends on many factors. Some of them are, देखिए,
अब इंटरप्रिटेशन जो होती है डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट लोगों की, वो डिफरेंट होती है। जैसे कि एक बच्चा अगर स्नेक देखेगा तो उसको वो टॉय लगेगा, उसको ये थोड़ी पता है कि सांप है और सांप काट लेगा। एक बच्चा अगर सांप को देखेगा तो उसके लिए वो टॉय है, तो वो जाएगा उसके साथ खेल सकता है। वहीं एक बड़ा कोई बच्चा है जिसको पता है कि सांप है, तो उसको देख के क्या होगा, डर जाएगा। ओके, उसी तरीके से जो एक नॉन वेजिटेरियन है वो अगर फ्लैश बना रहा है तो उसकी स्मेल उसको अच्छी लगेगी, लेकिन जो वेजिटेरियन है उसके लिए वो स्मेल क्या हो सकती है, फाउल हो सकती है, उसको नहीं पसंद आएगी। तो सबकी अपनी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं, तो इसीलिए हमें किसी की भी लाइक्स और डिसलाइक्स का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं सेंसिंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड। Loud music could be fun and enjoyable when we are in a party mood, but if we have to study or we are not feeling well, then the same music can be very disturbing and can cause us a headache। देखिए, अगर हम फन मूड में हैं और हम पार्टी में हैं तो लाउड म्यूज़िक जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वहीं अगर आप पढ़ रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वही म्यूज़िक जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, लेट्स नो ऑल बेबीज आर बोर्न कलर ब्लाइंड। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सब क्या होते हैं, कलर ब्लाइंड होते हैं। ओके, फैमिली बैकग्राउंड। आवर टेस्ट लार्जली डिपेंड ऑन आवर फैमिली बैकग्राउंड। अ चाइल्ड of a vegetarian couple will generally eat vegetarian food. Similarly, if the family members are fond of Western music, it is likely for the child to take up a liking for that म्यूज़िक। देखिए, अब जो टेस्ट होता है वो लार्जली डिपेंड करता है कि आपकी पसंद नापसंद है, जो लार्जली डिपेंड करती है आपकी फैमिली पर ही। जैसे कि कोई एक वेजिटेरियन कपल है तो उनका जो बेबी होगा वो भी वेजिटेरियन ही खाएगा। उसी तरीके से कोई एक फैमिली है जिसको वेस्टर्न म्यूज़िक पसंद है, वैसे ही उनका बेबी जो होगा उसे भी उसकी लाइकिंग वेस्टर्न म्यूज़िक में ही हो सकती है। ओके, लेट्स नो if one sense organ is weak, there are chance that one or more of the other sense organs might be stronger than the normal people। देखिए, अगर किसी का एक सेंस ऑर्गन वीक है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बाकी जो 4 सेंस ऑर्गन्स है वो नॉर्मल पीपल से उनके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ओके, occupations. The municipal workers might not find the smell of the garbage stinky, while it could be an unbearable foul smell for the पासर्स बाय। देखिए, जो म्यूनिसिपल वर्कर्स जो होते हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए गार्बेज की स्मेल जो है वो स्टिंकी में भी नहीं हो सकती है, लेकिन वहाँ से लोग जो गुजर रहे होते हैं उनके लिए वो बहुत बुरी स्मेल हो सकती है। ओके, तो वो अपने फेस को, नोज को कवर करके वहाँ से निकलते हैं मेनली। ओके, कल्चरल बैकग्राउंड। Tradition followed by a family influence the sense of the child. We might like hot, spicy and oily food because that is how it is eaten in our families. People in the Western countries do not like such food. The culture of living in a joint family is prevalent in our country but not in the Western world। देखिए, एक फैमिली की जो ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं किसी बच्चे के सेंसेस को। ठीक है, जैसे कि आप मान के चलिए वेस्टर्न कल्चर में स्पाइसी फूड ज़्यादा नहीं खाया जाता, वहीं हमारे कल्चर में लोग स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं, तो जो उनकी आने वाली जनरेशन होगी वो भी ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करेगी। जैसे इंडियंस होंगे उन्हें स्पाइसी ज़्यादा पसंद होगा, वहीं जो वेस्टर्न कल्चर के लोग होते हैं उन्हें इस तरीके का फूड ज़्यादा पसंद नहीं आता। ओके, नाउ लेट्स नो all cultures and religions teach us to have faith in God and respect each other। सभी कल्चर्स और रिलीजन्स हमें ये सिखाते हैं कि हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, pose to do। Write the names of 5 things that smell of which you like and 3 things the smell of which you do not like। I like the smell of, I do not like the smell of। ये आप खुद से करेंगे। A challenged one। One may either be physically or mentally challenged. A physical disability implies that one is unable to use a part of his body completely or easily because of a physical condition, illness, injury, etc. There are some special or differently able people who are born with undeveloped some
impairments like impairment of sight blind, impairment of hearing deaf, or impairment of speech dumb. They are called special because they have special needs. They need our love and care, but they do not seek our pity. We should help them to live normal life with the other people in the society. They should not be looked down upon or considered as incapable. देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, ओके उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि उनकी फिजिकल कंडीशन ऐसी होती है कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, जैसे कि उनको इलनेस हो सकती है, इंजरी हो सकती है, ओके वो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं जो कि उसी तरीके से पैदा हुए होते हैं, ओके तो ऐसे लोगों को हमें हमेशा लव एंड केयर दिखाना चाहिए, उन्हें कभी भी अनइक्वल ट्रीट नहीं करना चाहिए, ना ही उन पर पिटी मतलब के दया दिखानी चाहिए। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। लुइस ब्रेल डेवलप्ड अ स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल, script of the visually impaired people. They read the script by moving their fingers over the raised dot. The braille writer enables them to write. देखिए लुइस ब्रेल जो थे उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई थी जिसे ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, और ब्रेल स्क्रिप्ट मेनली जो है वो जिन लोगों को दिखाई नहीं देता था, विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग थे उन लोगों के लिए थी। तो ये स्क्रिप्ट पे आप इजीली अपने फिंगर्स से पढ़ सकते हैं, उस पर कुछ रेज्ड डॉट्स होते हैं जिसके थ्रू आप रीड कर सकते हैं। ओके नाउ the hearing and speech impaired can be solved to some extent with the sign or with the help of a sign language। ओके देखिए हियरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट जो है वो सॉल्व की जा सकती है किस तरीके से, साइन लैंग्वेज से। ओके ओवरकमिंग फिजिकल चैलेंजेस, there are certain personalities who had to face a physical or a mental or a physiomenomental challenge but they did not like it before. For example, Helen Keller was born a healthy child but she lost her vision and hearing and speaking powers due to some illness. She came out of her melancholy world with the help of her teacher Anne Sullivan, who taught her by writing with her fingers on her hand. She gradually learned to read and write in Braille. She learned 5 languages and became a famous author and orator. She dedicated her life to the blind and deaf. Her autobiography, The Story of My Life, has been great inspiration for the people like her. देखिए अब इस तरीके के कई लोग हैं जो कि आगे बढ़कर आते हैं, सक्सेस लेते हैं। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है हेलन केलर का। वो जब बोर्न हुई थी तो वो ठीक थी, लेकिन एज के अकॉर्डिंग जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसके बाद उनकी कुछ इलनेस आई जिसकी वजह से उनकी विजुअल और हियरिंग जो पावर्स हैं वो चली गई थी। ओके नाउ स्पीकिंग पावर्स भी चली गई थी, लेकिन जो उनके टीचर हैं एने सुलीवन, उन्होंने उन्हें पढ़ाया कि किस तरीके से अपने फिंगर्स का यूज़ करके अपने हैंड पे लिखकर आप चीज़ें समझ सकते हैं। इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी, ब्रेल लिपि से इन्होंने पढ़ना सीखा, ब्रेल स्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं। ओके तो इन्होंने अपनी लाइफ जो है ऐसे लोगों को डेडिकेट की जो कि उन्हीं की तरह हैं। ओके इन पर इनकी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी गई है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ओके नाउ अनदर एग्जाम्पल इज स्टीफन हॉकिंग, who due to disease lost control over his limbs and could neither speak or write but still became the world famous physicist. Such people have proven that where there is a will there is a way। देखिए दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है स्टीफन हॉकिंग। इन्हें भी कुछ डिजीज़ हो गई थी जिसकी वजह से इनकी जो स्पीकिंग और राइटिंग की पावर थी वो चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये एक बहुत फेमस फिजिस्ट बने थे। ओके तो इस तरीके के जो लोग हैं वो हमें ये शो करते हैं कि जहाँ विल होती है वहाँ पे वे भी होता है। ओके पोस्ट टू लिस्ट अ फ्यू प्लेसेस वेयर यू हैव सीन दिस साइन, ये आप खुद से करेंगे। सम अप, everyone has his own likes and dislikes. Human beings have various sensors in the body which are sight, hearing, touch, taste and smell.
The sensing of each sensor send information and help in understanding and perceiving the world. The nervous system receive and process the information. The same thing can be interpreted differently by different people. The differently abled people are special people. We must help special people but not pity them. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.